टीवी का एंग्री यंग मैन कहते हैं और इंडस्ट्री इन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहती है। उतरन के मिस्टर राठौड़ हो, सादा हक के अभय सर या फिर हेलो मिनी वेब सीरीज के आदित्य ग्रोवर, नन अदर देन गौरव चोपड़ा। इतने सालों में हमने गौरव के कई अवतार, कई शेड्स देखे हैं, लेकिन ये साइड कभी नहीं देखी, हिज स्पिरिचुअल साइड। Thank you so much, Gaurav, firstly, for being on my show. And this show is all about spirituality and belief systems. So, I just want to know the very first thing from you कि हर किसी का एक belief system है, एक spiritual zone है. किसी के लिए religion एक spiritual zone है, किसी के लिए कोई भी ऐसी चीज़ जो वो कर्मा के रूप में लेते हैं, deeds के रूप में लेते हैं. हर किसी की एक spirituality है. आपके लिए spirituality की definition क्या है? I think spirituality की definition नहीं होनी चाहिए. I think वो एक defined चीज नहीं होनी चाहिए. क्योंकि I think it varies from person to person and it keeps evolving. So even for the same person, I don't think what we thought of when we were 5 years old works now. Works at 20 or then 25 or then 30. It keeps changing as life teaches you. And if you're willing to learn your lessons, and most importantly, if you are humble enough to understand that life lessons का मतलब होता है अपनी गलतियां समझना और accept करना. हम सिर्फ अपनी accomplish जो the things that we accomplish, the accomplishments की बातें करते हैं, and shortcomings को mostly ignore करते रहते हैं, या उनके बारे में बात करना हमें comfortable नहीं लगता. So when you start admitting and accepting the mistakes that you make, that's when the process of improving and evolving starts. And I think as you understand your flaws and the mistakes that you make and you try to evolve, simultaneously your philosophy of life and spirituality also evolves. So, coming back to the primary question, I think there is a God, a maker, the CEO of this big organization. और ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इतनी खूबसूरत और इतनी इंट्रिकेट एंड सो वास्ट दैट ये इमोशन पे नहीं चलती, ये सिस्टम पे चलती है. एंड नेचर टेल्स यू, द यूनिवर्स टेल्स यू दैट एवरीथिंग हैज अ साइकिल, एवरीथिंग हैज अ सिस्टम, everything is bound by some rules. And the rules function in such a way that the give and take is always equal. The action always has a reaction. And everything has a cycle of completion, of starting and ending, and then starting again. And I don't just mean life. Everything seems to be bound by those laws of godliness. And so for me, we are a microscopic particle of insignificant dust in the vastness of this amazing system. And हम चाहे कितना भी चाहें कि हम खुद को इम्पोर्टेंस देना चाहें या अपनी इंटेलिजेंस को इम्पोर्टेंस देना चाहें, या अपनी ह्यूमन बीइंग एरोगेंस में खुद को बहुत नॉलेजेबल और वाइज समझना चाहें, और कहें कि हम सब जानते हैं, असल में हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, शायद कभी जानेंगे भी नहीं. बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, हिडन हैं, और हम लेसन सीख के आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, जबकि हम बहुत माइन्यूट पार्टिकल वी नो अबाउट दिस एंटायर कॉस्मोस, हाउ इट फंक्शंस एंड हाउ इट्स रनिंग, राइट? not just that, even for our own selves, हम तो खुद को ही नहीं जानते. अपने टेम्परामेंट को समझने में आधी जिंदगी बीत जाती है, दूसरों की कंप्लेंट निकालने में बाकी आधी जिंदगी बीत जाती है, और इतने में एक जिंदगी खत्म हो जाती है. So true.
तो हमारी जिंदगी तो मतलब इसी में खत्म हो जाती है कि मेरे आसपास वालों में क्या प्रॉब्लम्स हैं, और फिर रियलाइज करना कि अरे मुझ में भी हैं कुछ प्रॉब्लम्स। और पहले तो डिनायल कि नहीं नहीं मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझ में प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। Yeah. And बट especially when in 20s we know, then in 30s we know something more about us. And by the time we are going towards 40s and 50s, we know that we are very, we are still to know many things about us. कि हमें कहाँ improve करना था, क्या regrets थे, ये कैसे हम कर सकते थे. नो We आई नो, एंड आई थिंक इस जर्नी में कुछ कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं कि उनका ये प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाता है, एंड फॉर सम पीपल दिस प्रोसेस स्टार्ट्स अ लिटिल लेट. When it starts late, it's a little more convenient. You had a fun time. Um, when it starts early, it gets complicated because the more you dig deep inside you and understand your mistakes, the more difficult it is to then go on living with that mistake. Then you want to do something about it, and that's a difficult process. Uh, it's also humbling, and you have to then apologize to yourself and to many people for all the mistakes that you make. And that's, of course, in 2021, not an easy thing to do. Nobody wants to apologize. Even when we make blatant mistakes, nobody wants to apologize. Government apologize नहीं करती, सिटीजन्स भी apologize नहीं करते. कोई किसी की गाड़ी पे स्क्रैच मार जाए तो जब तक उसकी गाड़ी रोक कर कॉलर ना पकड़ो वो सॉरी नहीं बोलता, वो वरना गाड़ी निकाल के निकल जाता है. I mean that's the world that we live in. Uh, you know, I personally feel that जिनकी जिंदगी में ये प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाता है, it's part of their destiny to have that extra bit of wisdom. It might make their lives more difficult because with wisdom comes all of these complications, like I just said. Right. But it's part of their destiny. Maybe their old souls. Maybe they're passing on their old wisdom from their previous lives. But I think for people for whom it starts early, it's a special journey. It's tough, but it's special. But each one to his own. Like they say, ignorance is bliss. आप अपनी जिंदगी और अपने दिमाग को जितना सिंपल रखें, आप उतने खुश रहेंगे, is what everybody says. And that's true. In the materialistic version of our lives, you would be happier, and you would lead a more simpler, cuter life if you were to just live in the moment and not worry about anything, and just think about yourself and just think about what you want to eat, what you want to do. और उस self के centered अगर जिंदगी हो तो it's easier and it's more convenient. But like I said, for people जिनकी जिंदगी में वो जल्दी शुरू हो जाता है, it's a little more difficult. And I'm saying this from experience. I think I was always matured enough to understand that my understanding is very limited, and that I need to know more. I need to understand more. I need to understand other people. I need to understand myself. I need to understand emotions. I need to understand how things are in this beautiful universe. And all of these curiosities led for me to think a lot more than usual people. And it is so natural for me, बचपन से ही, that मैं अपने teenage years से ही सुनता आ रहा हूँ कि यार अब इतना कौन सोचता है. और मैंने जो बात spontaneously कह दी, उसके जवाब में कोई बोलता यार तुम इतना सोचते क्यों हो, और मैं आगे से कहता था नहीं मैं सोच के नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही हूँ. But I realized very, very soon that what to me is like that, to a lot of other people is
कि उनको समाधि लगानी पड़ेगी, बहुत वक्त लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, देन दे विल रीच अपॉन दिस कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्ड थॉट, जो मैंने ऐसे ही बोल दिया. सो आई रियलाइज दैट आई वाज अ लिटिल डिफरेंट and boring. But Gaurav, tell me one thing, that you had a great journey, but अगर ये गॉड पे बात आ रही है, विश फुलफिलमेंट पे बात आ रही है, हमारे सेंस ऑफ थिंकिंग पे है, तो अगर आपको कोई प्रोजेक्ट या कोई भी चीज चाहिए होती है, तो एक ऑप्शन होता है कि दैट वी आस्क इट एवरी डे फ्रॉम द हाई पावर कि मुझे ये मिल जाए, या एक होता है कि अगर मैं डिजर्विंग हूं तो मुझे मिल जाएगा. विच पाथ डू यू फॉलो विद दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू गेट समथिंग? I've understood that you cannot get anything. You're supposed to get it or not. You're only supposed to try, and you're supposed to try with the clarity in your mind that if this does not happen, you should know that I tried and it's all right. So it needs to center around your effort and not around you getting it. So while I'm trying for something, मैं काफी crazy hyper हो जाता हूँ in trying to make sure I'm putting in my best or not. And I'm very critical like that. So I feel like most of the nights I sleep giving myself an F in the report card saying, no, you didn't do your best. You could have done better. There is ऐसा नहीं कि तुम थक मर गए, तुम और कोशिश कर सकते थे, तुम और ट्राई कर सकते थे, तुम और भाग सकते थे, so on and so forth. And I think उस तरीके की सेल्फ क्रिटिकलिटी मुझे हमेशा sort of on my toes रखती है. मैं कभी भी, हाँ यार मैंने तो कर ली कोशिश यार, मतलब अब मैं और क्या कर सकता था यार, मतलब मैंने तो कर लिया यार, मतलब ये मैं कभी नहीं बोलता हूँ. For me, till the time I feel like हाँ मतलब मैं अब बिल्कुल ही हार गया हूँ in terms of I have no more moves or effort left. Till the time that happens, I don't want to stop. And so this process sometimes, I'm not saying चीज के मिलने पर खुशी नहीं होती या ना मिलने पर बुरा नहीं लगता, होता है, बट सचमुच इतना बुरा नहीं लगता और सचमुच इतनी खुशी भी नहीं होती. एंड मेरे आसपास वाले लोग ये जानते हैं कि उन्हें मुझे जैसे झंझोड़ना पड़ता है कहने के लिए कि भाई कुछ बहुत बड़ा हो गया है, तुम कुछ रिएक्ट तो करो. And it's because for me, I've seen enough failures, I've seen enough disappointments, many obstacles, more obstacles and failures than successes, and yet you are always considered to be a successful story. You're always considered to be somebody who's done well. And I always tell people that that's not really true. What's true is that the achievements are big. And because the achievements are big, people don't want to look at the failures. The failures outnumber the achievements by a great multiplication factor. In fact, कुछ 2-3 साल पहले वो TEDx की talk होती है जहाँ पर they call people to give inspirational talks and I went there and I had prepared a speech and पता नहीं क्या हुआ, वो एक दिन पहले वहां पहुंचे और वो एक टेक्निकल रिहर्सल करने के लिए स्टेज पे गए और मुझे ऐसा लगा कि ये तो सब झूठ है. जो मैं बोल रहा हूँ ये तो वो है जो मुझसे एक्सपेक्टेड है. मैं सचमुच तो ये नहीं बोलना चाहता हूँ, ये कंप्लीट सच तो नहीं है. एंड सो till about 4 in the morning मैं दोबारा से अपनी स्पीच लिख रहा था when it had to be said in the morning. And my speech was called Celebrating Failures. And it's coincidental कि उस वक्त मैं एक बहुत बड़ी थिएटर प्रोडक्शन कर रहा था जिसमें मैं देवदास का रोल कर रहा था. एंड देवदास से बड़ा तो कोई लूजर दुनिया में है नहीं. Right. So
it's so sort of synchronized with even what I was doing in terms of work. So what I'm trying to say is when you're honest, तो वो इमोशन सिर्फ एक एस्पेक्ट के लिए सच नहीं होती. जब आप सच्चाई से उस चीज को करते हैं तो वो इमोशन आपके सारे एस्पेक्ट पर बैठ जाती है. यू डोंट हैव टू अप्लाई इट जस्ट फॉर वन एस्पेक्ट. एंड दैट्स द ग्रेट थिंग अबाउट ट्रूथ. वो प्रूव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ट्रूथ को. वो ट्रूथ बाय इटसेल्फ ही प्रूफ होता है. द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट डज नॉट नीड a proof. It is proof. So you can actually use that to say ये east है because यहाँ से sun उग रहा है. And I think that is the one fact that people need to understand. That if you're trying to reason it out, explain and convince yourself or somebody else कि आप कुछ कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं. If you're having to explain, then it's not the truth. Then it's not the truth, right? And one more important thing is जब सच होता है, सच की power, उसकी जो light है वो बहुत bright है. And you know, like you said, sun is in the east and so we take it as a east. That's so true. And कहीं ना कहीं वो white power जिन लोगों में होती है, they make their way through with that white light and that trueness within them. और वो फिर भीड़ से एकदम अलग होते हैं चाहे फेलियर्स कितने भी हों, बट उनके वो फेलियर्स भी एक जर्नी में इंस्पिरेशन की तरह बन जाते हैं. एंड कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, आई रिमेंबर आई वाज रीडिंग अबाउट यू दैट यू हैव डन स्टडीज फ्रॉम फॉर फैशन डिजाइनिंग एंड देन यू एंटर्ड इन एक्टिंग इंडस्ट्री. सो ये आपका मैनिफेस्टेशन था दैट यू वांटेड टू बी एन एक्टर एंड इट वेंट थ्रू दैट वे, और इट जस्ट हैपेंड बाय डेस्टिनी विथ यू? दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नो अबाउट यू दो. सोचा भी नहीं था. पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मुझे देख के लगता नहीं है, पर था. और बहुत शरीफ बच्चा था स्कूल में. मतलब मुझे हाथ उठाने में भी 10 बार सोचना पड़ता था बिकॉज मुझे बिल्कुल अटेंशन नहीं पसंद थी. मैं चुपचाप, मतलब मुझे देखो मत और मुझे बुलाओ मत और मुझसे बात मत करो वाला स्टूडेंट था. काफी, आई वुड नॉट से अंडर कॉन्फिडेंट बट शाय. ऑल बॉय स्कूल में थे हम. सेंट कोलंबस इज अ वेरी फेमस स्कूल इन दिल्ली, जहाँ से और भी बहुत सारे लेजेंडरी लोग हैं. सो नाउ इट्स बिकम मोर फेमस. शाहरुख खान, लड़कियों की तरफ तो देख ही नहीं सकते थे. मतलब नजर उठाकर बात नहीं कर सकता था मैं लड़कियों से. अगर लड़कियां सामने आ जाएं तो मैं नजर नीचे करके चलता था. I was so shy. I couldn't look at them and talk. तो you know, ये कभी सोचा ही नहीं कि जो आदमी इतना शाय हो वो ऐसे कैसे सोचेगा कि मैं दुनिया के सामने ऐसे बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस करूंगा या I'll put myself out there in front of the camera for millions of people to see. My father was my idol and my hero. And I know that's true for most people. But my father deserved to be a hero and an idol. His life was so inspirational. And आप इतने इंस्पायर्ड थे ना उससे कि स्टैंडर्ड्स हाई थे हमेशा. कि कभी किसी को कहना नहीं पड़ा कि ये मत करना, ये करना, पढ़ना तो इतने मार्क्स लाना, स्पोर्ट्स में जाना या नहीं जाना. It was all very organic for us. That whatever that you had to do, you had to do it well. So I was into sports. I was even into a little bit of declamation. I was an artist at school. I used to sketch. In fact, एक साल था जब क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, चेस, आर्ट, swimming, and I'm forgetting couple of other. We had like a sports meet जिसमें ये सारे tournaments थे, and I had a medal and certificate in every one of them. And yet I was so shy. So
कैपेबिलिटीज अलग बात होती है और खुद को बाहर लोगों के सामने एज एन एक्टर लाना अलग बात होती है. आई डोंट थिंक मैंने कभी ऐसा सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा. इट जस्ट सो हैपेंड दैट स्कूलिंग के बाद आई वेंट फॉर निफ्ट. एंड निफ्ट में जाके एक क्रिएटिव जो मेरी स्ट्रीक थी, जो स्कूल में स्केचिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, कार्टूनिंग तक लिमिटेड थी, वो क्रिएटिव स्ट्रीक को एक एक अम्ब्रेला मिल गई, एक छतरी मिल गई, वह वो ब्लॉसम कर गई अच्छी तरह. एंड वहाँ क्या हुआ कि निफ्ट में लड़के काफी कम होते हैं और जो होते हैं उन पे भी काफी शक होता है कि वो हैं कि नहीं. तो मैं इकलौता कुछ एक 6 फीट 1 इंच का लड़का था वहाँ. तो जस्ट बाय डिफॉल्ट हर कोई जो अपने कपड़े डिजाइन करता था फॉर मैन, वो मुझ पे ट्राई आउट कर लेते थे या फोटोशूट कर लेते थे या मुझे फाइनली रैंप पे चला लेते थे. एंड this one thing led to another on its own, and I must mention I had a girlfriend in college who was instrumental. उसको एंटरटेन करने के लिए मैं अकेले में उसके साथ कुछ एक्टिंग करता रहता था उसको एंटरटेन करने के लिए. And she said that I'd become another person. She said you become a better version of yourself when you act. Okay. And it took me a while to accept. And then I realized that bachpan se hi I would watch a great film or some good performance, sometimes even some actress performing a good scene or a good role, and go back to my room and unknowingly repeat the scene in front of the mirror. But ये करते हुए भी मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ऐसा करना है या ये मेरा करियर ऑप्शन है या this is what I'm pursuing, because the mind was so clear कि मैं academically कुछ कर लूंगा और फिर इस तरह पापा की तरह कुछ ऐसा बनूंगा और फिर कुछ ऐसा जाऊंगा. It was so set that मैंने कभी खुद को admit ही नहीं किया कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ. So it led to another third person telling me that, listen, when you do this, you are very good and you become a better person. And simultaneously, all of that exposure with fashion and walking the ramp and I did some stage and theater. और उसमें भी उसने काफी मदद की मेरी, because मेरे कॉलेज का होमवर्क वो कर देती थी एंड मदद थी. मैं जाकर अपनी थिएटर रिहर्सल्स कर लेता था. एंड कुछ देर तक तो मुझे ये शक था कि ये क्या मैं कहीं उनका सपना तो नहीं जी रहा हूँ. क्या मैं ये चाहता हूँ या जस्ट बिकॉज मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा कहा है और मैं इंस्पायर हो गया हूँ. एंड देन आई रियलाइज दैट मैंने कभी खुद से कहा नहीं, पर मैं चाहता था. वो मैंने अपने पूरी बचपन की बातें याद की और तो रियलाइज हुआ कि वो चीज हमेशा से अंदर थी और कभी कही नहीं. बाकी एस्पेक्ट्स में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो आप वो कर रहे थे. You never allowed yourself to even admit that you would want to do this. But this is also part of destiny. उनको मेरी जिंदगी में यही contribution करने के लिए आना था, because she actually was there with me till the time I came down to Bombay and started drawing. She was here. She helped me settle down. And that's also part of destiny and your whole spiritual journey. कि आपकी जिंदगी में लोग आते हैं एक पर्पस से और वो कार्य जो उनको करना होता है, that responsibility that they need to undertake and complete. As soon as that's completed, then their job is done. And this must be her contribution, and which is why every time this question is asked, I do mention about her.
because I feel like ये इतना बड़ा contribution जो उन्होंने दिया वो मैं कभी for granted नहीं लेना चाहता. बिल्कुल. And also, like coming back to the characters which you have played, like industry में आपको angry young man and no nonsense men की तरह लिया जाता है, and I have seen like the characters you have played are also like this. So do you pull those character or attract those roles because you are in person like that? Or is it your comfort zone that you love to play that because they come out so well that now they have given you that space that this is the perfect Mr. Gaurav Chopra? Like, you know, if somebody has to write it, they might just think about you and write that role. So is it your comfort zone or you like to play the character like this? I'm a bit like that. The anger has mellowed down. Okay. With time. Because वही realize हुआ कि वो चाहे सही भी था उस गुस्से में आदमी ऐसी चीजें कर बैठता है, ऐसी चीजें कह बैठता है जो बाद में नहीं कहना चाहता, रियलाइज करता है आदमी. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत कोशिश लगी और एफर्ट लगी उस गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में लाने की. मेरे साथ एक अजीब सी चीज है कि मुझे बचपन से सही फॉलो करने का कुछ एक passion है. For me, my whole pursuit is that. मतलब मुझे अपने मन का ना करना मंजूर है. I am happy not doing what I would enjoy or something that would give me pleasure or something that would make me happy. I am happier sacrificing that if I know that what I'm doing is the better option, is the more correct thing to do. And I don't know ये कब हुआ या ये कैसे हुआ. और वो सही और गलत की बात जो मैं कह रहा हूँ वो कोई रिलीजन, कोई बुक, पेरेंट्स की सिखाई हुई कोई 10 लेसन ऐसे नहीं है. वो एक मेरे अंदर की आवाज है जिसे मैं बस प्योर और ऑनेस्ट रखता हूँ. उसका टेस्ट ये है कि वो आवाज मोस्टली मेरे अगेंस्ट बोलती है. वो जो मैं चाहता हूँ वो नहीं कहती. उस आवाज को मैंने स्पॉन्सर नहीं किया हुआ है पैसे देकर कि मैं जो चाहता हूँ, मुझे जो करने का मन है, जो खाने का मन है, मैं अंदर से कह दूं कि मुझे अंदर से यही मन कर रहा है कि मैं ये खा लूं, मैं ये कर लूं. नहीं, मैं ऐसा नहीं करता. मैं आई कीप इट ऑनेस्ट. सो वो आवाज मुझे कुछ गाइड करती रहती है मोस्टली. एंड मेरे करियर चॉइसेस में भी वो आवाज ने ही डिसीजंस लिए हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट. मैं नहीं देखता ये लंबा रोल है कि नहीं, मैं नहीं देखता मैं इसमें पैसे कितने कमा पाऊंगा, मैं नहीं देखता कि ये कौन से चैनल पर है, ये चलेगा या नहीं चलेगा, इसके चलने से मुझे फायदा होगा या नहीं. वो रोल सुनकर मुझे अंदर से एक आवाज आती है कि मुझे करना है या नहीं. इट्स ऑलमोस्ट लाइक उस कैरेक्टर के बारे में सुन के आई थिंक ऑफ दैट पर्सन जो वो कैरेक्टर है, एंड whether I want to be that person or not. And I don't think about इस रोल में मैं कैसा दिखूंगा. Will I look attractive or not? Will people like me? Will I become a bigger star? I don't keep those parameters. So unknowingly ये career decisions हुए हैं, instinctive decisions हैं. इंडस्ट्री में स्लॉटिंग हो जाती है. सो आप जो अच्छा करते हैं वो अच्छा करने के बाद जब वो सक्सेसफुल हो जाता है, और सक्सेस का मतलब है टेलीविजन में टीआरपी, फिल्मों में पैसा, या द मनी रिकवर्ड. सो व्हाटएवर दैट यू डू, इफ इट बिकम्स सक्सेसफुल इन एवरीवन्स आईज, देन the same format is given to you again and again.
It's because it's a business and ये एक सक्सेसफुल फॉर्मूला बन जाता है एक सेटअप के लिए कि अच्छा इस एक्टर को लेकर अगर हम ऐसा रोल देंगे तो फिर वो अच्छा करेगा, ऑडियंस ताली बजाएगी और पैसे भी देगी और हम सब खुश रहेंगे एंड वी लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर वाली बात हो जाएगी एंड देन यू नो द बैंक इज हैप्पी एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज आल्सो हैप्पी एवरीवन जी बट मैं ये सब कुछ सोच सोच के नहीं करता अगर वो रोल कुछ ऐसा रोल है जो मैं पहले कर चुका हूँ तो नॉर्मली मैं ये देखता हूँ कि क्या इसमें कोई ऐसा नया एस्पेक्ट है जो मैं इस सेम टाइप के किरदार में ला सकता हूँ। क्या इस बार मैं उसे थोड़ा विनम्र बना सकता हूँ, क्या इस बार मैं उसे थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन बना सकता हूँ। ही इज एंग्री, ही इज इंटेंस, बट कैन ही बी सॉफ्ट स्पोकन? कैन आई एंग्री पर्सन बी सॉफ्ट स्पोकन? Can an angry person be polite? Yes, he can. But we don't assume it to be. तो अच्छा चलो इस बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस बार हम इसे इंटेंस प्ले करते वक्त सॉफ्ट स्पोकन रखेंगे। इस बार हम उसे वो मुस्कुरा कर बात करेंगे। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब तो यू नो वो वेरिएशंस करने में फिर आपको मजा आता है। लाइक आई सेड बिफोर, वो प्रोसेस में मैं इतना घुस जाता हूँ फिर कि a part of me becomes the character for that part. Yes. While I'm playing. उस कैरेक्टर की जिंदगी, उसकी इमोशंस, उसकी डिफिकल्टीज, उसका प्यार, वो सब मुझे फील होने लगता है। तो जितने भी रोल्स मैंने किए हैं वो उस दौरान मैं वो कैरेक्टर काफी हद तक बन जाता हूँ, तो उनमें काफी गौरव आ जाता है अननोइंगली। कभी कभी ऐसा हुआ है कि कैरेक्टर गौरव में आ गया है। I don't know, ये बात कभी किसी एक्टर ने बोली है कि नहीं, बट ऐसा होता है कि द कैरेक्टर दैट यू आर प्लेइंग सो ऑनेस्टली कि उसकी और आपकी जो सिमिलैरिटीज हैं वो बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। तो कभी कभी आप कैरेक्टर गौरव जैसा हो जाता है और कभी कभार गौरव कैरेक्टर जैसा हो जाता है। एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर टू स्विच ऑफ दैट बटन की शूटिंग खत्म हो गई एंड बंद, अब मैं वो नहीं। Right. Yes, it is about awareness, true. Because you have to be aware. Also to sort of keep your life simple. Once I come home, I don't want to be a celebrity. I don't want to think of myself as an actor or a famous person. I don't even want to worry about how my hair is or how my face is looking. घर पे मैं उतना ही सिंपल और झल्ला होना चाहता हूँ जितना एक आम आदमी होता है। I don't want to be special in any way in the house, so that the house and the ambience in the house remains simple. And remains normal. And as we know that you don't drink, you don't smoke, as you said that industry के norms से entertainment industry के जो particular protocols रहे हैं to socialize and to get work, to meet people, you have not done that in the past, but you got so many offers. I'm sure you must have lost many offers in between because of that as well. So उस बीच में दौरान में कुछ जो चीज़ें आई जहाँ रुक गए, कुछ समय हमें काम नहीं मिल रहा या कुछ भी, उस वक्त में आपने कभी सोचा कि मैं इस इंडस्ट्री को एक काम को साइड करके कुछ और करूं, या you had that in you that I will get it the way I'll be, no matter what, I follow the norms? No. I don't take my work that seriously. I do it very seriously. I don't take it very seriously. I have complete understanding in the fact that जो काम हम करते हैं ये दुनिया का कोई बहुत जरूरी काम नहीं है। इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है बिकॉज ओवर generations of giving it importance in the media, in gossip, in news, in newspapers, that अब हम सवाल ही नहीं उठाते कि ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं। बट क्या किसी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर किसी एक्टर का चेहरा होना चाहिए या किसी फिल्म के बारे में लिखा होना चाहिए?
क्या हम बड़े सेलिब्रिटी होने चाहिए या टीचर्स सेलिब्रिटीज होने चाहिए? आई मीन थिंक अबाउट टीचर्स जो okay, think about people who come out into the world and change the world. Um, people who have fantastic ideas, people who build things, people who people who innovate, people who research, people who अब हमें रिसर्चर्स डॉक्टर्स मेडिकल फ्रेटर्निटी की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है आजकल, बट आई एम सेइंग ये लोग जो काम करते हैं, ये जो लोग जो बाहर जाकर इनोवेट करते हैं, सोचिए उनका टीचर कितना इंपॉर्टेंट है, जिसने उनको पढ़ाया ताकि वो ये कर सके, जिसने उनको इंस्पायर किया ताकि वो ये इनोवेट कर सके, और उन्होंने वो इनोवेशन की जिससे सबकी जिंदगी इंप्रूव हो गई. सो वो कितना अमेजिंग, वो कितना रिस्पेक्ट वर्दी, वो कितना क्लैप वर्दी इंसान है वो टीचर जिसने ऐसे लोगों को तैयार किया. Now he should be a celebrity. When he should walk out of his house, people should run to him for an autograph, for a picture. But ऐसा नहीं होता. हम एक्टर्स के पीछे भागते हैं, हम सेलिब्रिटीज के पीछे भागते हैं, पर एक्टर्स और सेलिब्रिटीज की फोटो न्यूज़पेपर में छपती है बिकॉज उनको इम्पोर्टेंट और अट्रैक्टिव दिखाया जाता है, बट एक्चुअली वो इम्पोर्टेंट है नहीं या होने नहीं चाहिए. I just act. I just produce some films or some television, which is part of entertainment in not even India. It is just the entertainment industry in Bombay. There are some 10 other industries just in India. And to talk about the number of entertainment industries in the world, and to talk about the amount of entertainment that is already there existing for all of us to watch. It's not the most important thing. It is made out to be important, and everybody else then just assumes it to be important and just falls into the trap. So I have never allowed myself to fall into the trap. I am an actor, but I know that this is not an important thing to do. And so आपने जो काम किया वो उसके लिए आपको तारीफ मिल गई. 10 लोगों की जिंदगी में उससे खुशी हुई. किसी की बहुत डिफिकल्ट टाइम में आपके किसी काम से अगर उसको खुशी मिल गई तो हाँ, वो सबसे बड़ा अवार्ड है. और मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई. ये बहुत लंबी कहानी है, फिर मैं जल्दी से बताता हूँ. I finished shooting for a show called Uttaran in 2014. In 2018 and 17, I was in Europe shooting for a huge show called Dancing with the Stars. Dancing with the Stars is one of the biggest shows in the world. As a celebrity contestant because of Uttaran. और ये मैं कभी सोच नहीं सकता था शूट करते वक्त मैं कभी सोच नहीं सकता था कि आज के 5 साल के बाद दुनिया के किसी दूसरे कोने में, जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं रहा हूँ, ये शो करते वक्त या ये सीन करते वक्त वो ये सीन देखकर इतना इंस्पायर हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे कि वो मुझे इतनी इज्जत देंगे या मुझे इतना प्यार देंगे. बट ये बात इंपॉर्टेंट नहीं. बात इंपॉर्टेंट ये है कि वहां जाने के बाद मैंने रियलाइज किया कि वो जो मेरा कैरेक्टर था, जो राइट के लिए लड़ता था, सबकी मदद करता था, सेल्फलेसली अपना नुकसान कर लेता था, बट राइट के लिए लड़ता था और सही आदमी को भी जाके बोलता था कि वो हमारे टेलीविजन पे कम होता है. आप हीरो है ना, तो आप कभी दूसरे पॉजिटिव कैरेक्टर को कभी बुराई नहीं करते, बट ये कैरेक्टर ऐसा था कि ये किसी पॉजिटिव कैरेक्टर को भी जाके बोलता था कि आप अच्छे हैं पर आज आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है अपनी अच्छाई में. बट एनीवे, इस कैरेक्टर की स्ट्रेंथ से वहां पर एक लड़की थी जो she was handicapped from birth. She was on a wheelchair. She was about 15-16 years old. She had her whole life in front of her, but she knew that her life was going to be on a wheelchair. She didn't know whether she was going to find love or whether she was going to, what is going to happen to her. She lived in this beautiful village called Khulo, right into the mountains in Eastern Europe. And उसको इस कैरेक्टर्स को देख के ना होप मिलती थी.
उसको लगता था कि उसके साथ भी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा, बिकॉज जब तक ऐसे लोग हैं तब तक कोई उसको भी किसी उसकी इस मिजरी से बचा ले। एंड नाउ थिंक अबाउट द फैक्ट कि कुछ 5-7 साल पहले मैं इंडिया में शूट कर रहा हूँ, मैं अपने डायरेक्टर से झगड़ा कर अपनी लाइंस बदल कर कुछ कहता हूँ, कुछ इस तरीके से कहता हूँ और करता हूँ। मैं कैसे सोच सकता हूँ कि किसी और देश में आज के 5 साल के बाद कोई इस हालात में कोई लड़की इसको देखेगी और उसको वो इंस्पिरेशन मिल जाएगी जहां पर शी लिव्स हर लाइफ with a smile only because of this hope that there is somebody like this guy Yeah. who is going to come. So when I went, उसने इतनी चिट्ठियां लिखी थी उस टेलीविजन नेटवर्क को, Okay. उन लोगों ने मुझे उन चिट्ठियों के बारे में बताया और मैंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ उससे। और they were also nice enough, वो मुझे फ्लाई करके उसके पास लेके गए और मैं उसके पास बैठा, मैंने उसके घर पे खाना खाया। छोटा सा विलेज था, छोटा सा घर था, मैंने उनके साथ खाना खाया, वक्त बिताया। वो अभी तक मुझे लिखती है इंस्टाग्राम पे, मैं जवाब देता हूँ जब दे सकता हूँ। इट्स मेरे लिए, मतलब अगर हम मेरी एक्टिंग की बात कर रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ ये इंस्टेंस बता पा रहा हूँ एज अकम्पलिशमेंट। मतलब अगर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट किया है तो ये किया। अगर मेरी एक्टिंग से ऐसे किसी की जिंदगी में होप आ जाती है, मेरे कैरेक्टर से, मेरी पर्सोना से, मेरी आवाज से, मेरी इंटेंसिटी से, मेरी ऑनेस्टी से, कन्विक्शन से, किसी भी चीज से अगर किसी को इस किस्म की होप मिलती है तो फिर ये अकम्पलिशमेंट है। बाकी सिर्फ एंटरटेनमेंट है। एंड एज लॉन्ग एज हम लोगों को एंटरटेन करें इट्स ऑलराइट, बट उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना मैं सही नहीं समझता। And that is true, क्योंकि उत्तरन के कैरेक्टर से listening to this story is like such a great amazing experience, but बहुत सारी लड़कियों को ये इंस्पिरेशन मिली है कि उन्हें उत्तरन में आपके जैसा पार्टनर चाहिए लाइफ में, who's righteous, like with उत्तरन I have also come grown up watching that, so वो इंस्पिरेशन बना है वो कैरेक्टर because it was so righteous. उस वक्त बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। कैसे? बहुत सारे ऑफर्स आ गए थे आपके पास। नहीं सिर्फ मेरे पास, मेरे मम्मी पापा के पास। एंड मैं उन्हें ये कहता था, वो शायद रघुवेंद्र प्रताप राठौर से शादी करना चाहते हैं। पर सच ये है कि रघुवेंद्र प्रताप राठौर और गौरव में बहुत कम फर्क है। एंड लाइक आई सेड, पार्ट ऑफ डेस्टिनी होता है ये भी कि आप क्या करेंगे जो लोगों के दिल को छू जाएगा। उतनी कोशिश आप हर बार करते हैं, उतने ही प्यार से आप हर बार काम करने की कोशिश करते हैं। पर जब वो रिजल्ट किसी एक चीज से आना होता है तो वहां पर सब चीजें ऐसे बैठ जाती हैं। इट फॉल्स इनटू प्लेस। Yeah. So, when you were telling me about this girl and this experience entirely, which is inspiring, ये कैरेक्टर्स आप चुनते हैं, लाइंस आप बदलते हैं, वो मॉडिफिकेशंस होते हैं, सब कुछ होता है। समवेयर यू आर योर ओन क्रिएटर, विच आई गेट दिस एंटायर दिस इंटरव्यू थ्रू दैट यू आर योर ओन क्रिएटर। आप सब कुछ अपने हिसाब से, सही गलत के एस्पेक्ट में ना जाते हो, यू हैव बिकम योर ओन क्रिएटर। हाउ डू यू वॉन्ट टू डिफाइन दिस लाइफ एज बीइंग योर ओन क्रिएटर? बिकॉज बहुत कम लोग हैं जिन्हें सब कुछ अपने तरीके से करने का वक्त या मौका मिलता है, and you have got it. Being your own creator is itself a gift. Very less people do it. Which is why I said it's a blessing. Because even to create, you need to have the blessing to be able to create. God is a creator. God has created all this. And if He has given you that trait, it's a godly trait. If you can create something, it's a godly trait. And which is why I think it is going to sound a little old school and old fashioned, but when a woman becomes a mother, I feel उस वक्त वो एक godly moment होता है।
the way that she creates a life. Um, and that life then comes into this world. That moment is you cannot justify it or explain it in regular terms or um, It is the biggest आप creation. आप अपने लाइफ के दूसरे एक्सपीरियंसेस का ब्यौरा लेकर उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते पेन वाइज एफर्ट वाइज Yes. feeling wise it's just something else it's magic but coming back to your question I don't know मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं अपनी लाइफ का क्रिएटर हूँ मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ कि I'm a believer in destiny. Somebody who tries as much as I do, puts in as much effort as I do. So this is going to sound odd कि मैं इतनी effort डालता हूँ पर मैं कह रहा हूँ कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता. I know ऐसा सुनकर थोड़ा सा शायद लोगों को पेसिमिस्टिक लगता है कि तो फिर हम कुछ करें क्यों? पर मेरा जवाब ये है कि आपको ये कंट्रोल या ईगो क्यों चाहिए कि आप जो चाहते हैं वो हो जाए आई मीन इट्स दैट बेसिक गीता का सार आप अपना कर्म कीजिए और फल की चिंता ना करें फल के बारे में ना सोचें इनफैक्ट कहा यह जाता है कि कर्म करते वक्त ये सोचिए ही मत कि फल क्या होगा बिकॉज अगर आपने फल के बारे में सोच के कर्म किया है तो फिर आपने धर्म नहीं किया है कर्म धर्म बन जाता है जब आप फल के बारे में सोचे बिना करते हैं तो आपका काम धर्म बन जाता है when I don't think of what I will benefit out of this and so मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं क्रिएटर हूं ऑफ माय लाइफ मेरे लिए ये सब चीजें इनपुट्स देना सजेस्ट करना लाइंस बदलना कपड़े बताना अपने कपड़े पहनना लाना कैरेक्टर के लिए एक सुर बनाना उसकी लुक बनाना उसकी एक चाल अलग रखना मेरे दूसरे कैरेक्टर से लुक डिफरेंट साउंड डिफरेंट ये सब पार्ट ऑफ द क्राफ्ट पार्ट ऑफ माय एफर्ट पार्ट ऑफ माय ऑनेस्टी है क्रिएटर्स वो राइटर्स हैं क्रिएटर्स वो क्रिएटिव्स हैं जो बहुत प्रेशर में डेडलाइंस बहुत उनके सर पर तलवार की तरह लटकी रहती हैं दे हैव नो टाइम उनको रोज रोटी बनानी है और ऑडियंस को सर्व करनी है गर्मा गर्म बिल्कुल वक्त नहीं होता उनके पास एंड येट इतनी बार वो खूबसूरत काम कर लेते हैं बना लेते हैं खींचातानी होती है फ्रिक्शन होती है सेट पर बट somehow they manage it's an amazing thing to see so I think they are the creators I would just call myself as somebody who sincerely tries to do whatever that I can in my capacity if in my capacity I can understand clothes because of my NIFT background if I know how it can be styled or if I know how it can be constructed if I know what colors would work for the kind of theme, for the kind of mood, if I have all of that knowledge, I utilize that knowledge. कहते हैं ना नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती सो वो सब कुछ ऐड होके इट इज क्रिएटिंग सच अ ब्यूटीफुल स्पेस ऑन स्क्रीन फॉर यू एंड मतलब जो अभी माहौल चल रहा है फॉर कोविड एंड फॉर थिंग्स लाइक दैट जो प्रिविलेजेस हमारे पास थे वो सब चले गए हैं एंड वी ऑल आर ट्राइंग टू कोप अप विद दिस and of course I know that you lost both of your parents last year due to COVID तो उसके बाद भी अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रख के अपना काम करना बिकॉज लोग गिव अप कर रहे हैं सो एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस एंड फॉर द व्यूअर्स दैट डोंट गिव अप एंड हाउ डिड यू कोप अप विद दिस एंटायर सिचुएशन I'm really sorry I just asked No. because It's okay. It's almost like वो नहीं गए.
जितना ख्याल मैं पहले रखता था उनका, या जितने वो मेरे सबकॉन्शियस लेवल पे मेरे मेरे ज़हन में रहते थे। अ, अभी मम्मी को फ़ोन करना है, अभी पापा से बात करनी है, फिर बात करनी। अम, मैं 2003 में बम्बई आया था, तो अब 18 साल हो गए, और रोज़ फ़ोन पर बात हुई है, रोज़। एक दिन भी नहीं गया कि मैंने उन्हें फ़ोन नहीं किया। चाहे मैं कितना भी मसरूफ़ हो जाऊँ, या मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, या मैं किसी आउटडोर शूट पर हूँ, बहुत हेक्टिक है, नेटवर्क, कुछ भी करके रोज़, ताकि उन्हें कभी ऐसा महसूस ना हो कि उनका बड़ा बेटा उनके पास नहीं है। I was the first one to move out of the house, and they weren't very happy about it. Um, um, I was good at studies, and everybody thought I had, bright academic future in front of me, and I was one of the better students at NIFT, and we got a job at um, at 20. I had a job, a car. I was going, coming, and earning. And डेली जैसे सिनेरियो में तो यू नो लोग देखते हैं कि आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आपके पास एक बड़ा अच्छा सा लेदर बैग है, आप गाड़ी में बैठते हैं, जाते हैं, शाम को आते हैं, तो वो तो चोपड़ा साहब, मुंडा सेटल हो गया, मुंडे का ब्याह करा दो, मतलब वो हो गया। मुझे बस इतनी पंजाबी आती है, इससे ज्यादा नहीं अच्छा। आती। यू नो बट ये सब छोड़ छाड़ के फिर मैं किसी और चीज को परस्यू कर रहा था, एंड दे weren't वेरी हैप्पी अबाउट इट, दे फेल्ट मैं गैम्बल कर रहा हूँ, एंड दे वर वेरी सरप्राइज्ड कि मैं ऐसी कोई चीज परस्यू करना चाहता हूँ, घर में कभी किसी और ने नहीं की थी, एंड दे weren't श्योर कि मैं ग्लैमर स्ट्रक हूँ या मैं सचमुच करना चाहता हूँ। एंड सो यहाँ आकर उनसे कम्युनिकेट करते रहना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जिंदगी भर वो करता रहा। उनके जाने के बाद अब पहले से भी ज्यादा करता हूँ। अब वो हर वक्त साथ रहते हैं। बहुत बार ऐसे आंख बंद करके मम्मी से बात करता हूँ, सोने से पहले पापा के पांव छूता हूँ। मम्मी का एम्ब्रेस, उसकी वार्मथ, वो एम्ब्रेस करते वक्त उनकी आवाज, मेरा बेटा, इट्स इट्स देयर विद मी इवन राइट नाउ व्हाइल आई एम स्पीकिंग। उनका चेहरा, उनके उनके हाथ, उनके पाँव, उनके उनके लिप्स, उनकी आवाज। They say the sun is the representation of your father, the moon the representation of your mother. बहुत बार ऊपर देखकर कभी पापा से बात की, कभी रात को मम्मी से बात की, बहुत बार, और ऐसा करता रहूंगा। अम, बहुत लेवल्स पे ट्रैजिक होता है व्हेन अपने चले जाते हैं अचानक, बट मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था उसको डील करने का। मुझे नहीं पता कि मैं किसी और को क्या कहूँ। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये बहुत मुश्किल वक्त है, और हम एक ऐसी बीमारी के साथ लड़ रहे हैं जो अनप्रिडिक्टेबल है, और उसके बारे में हमारी जो नॉलेज है या जो हमको पता है, हालांकि ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ पता है क्योंकि सारा दिन न्यूज आती है, सारा दिन व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, बट ये सिर्फ ये दौर है ऑफ magnifying every piece of information and sharing it, because everything now works around that in terms of making money. Um,
the you know just make sure that आपके और आपके अपने परिवार के साथ ये ना हो, इवन इफ आपको डर नहीं लगता, इवन इफ आपको लगता है कि इट्स ओके, आप प्रिकॉशंस लेंगे और आप ठीक रहेंगे, फिर भी जस्ट मेक श्योर कि ये आपके आपके परिवार को ना हो। बिकॉज व्हाट आई कैन टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, अगर सिचुएशन खराब होती है तो ये अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी सिचुएशन है कि आप कुछ नहीं कर पाते। एंड वो हेल्पलेस फीलिंग मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई कभी फील ना करे। पैसा, नाम, पहचान, इस सब के बावजूद भी कोई कुछ नहीं कर सकता। जब सिचुएशन खराब होती है तो वो आउट ऑफ हैंड हो जाती है, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो डोंट लेट दैट हैपन टू यू और योर फैमिली मेंबर्स। So I'm not going to get into the debate of you should sit at home or not. You should, but if you don't want to, just make sure you don't get it. Make sure your family members stay safe. If everybody makes sure of this, we will stop the chain. So don't worry about the country and don't worry about the city. Worry about yourself. Make sure you are fine. You know, if you are okay, आप अपने को बचा के रखेंगे। हर आदमी सिर्फ खुद को बचा के रखेगा, आसान होता है। हम अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं कि वो हमें बताएगी कि घर से निकलना ठीक है कि नहीं। गवर्नमेंट बोलेगी हमने लॉकडाउन खोल दिया तो निकल जाएंगे, गवर्नमेंट बोल देगी लॉकडाउन है तो हम घर में बैठ जाएंगे। हम अपना डिसीजन नहीं लेना चाहते। गवर्नमेंट लाखों करोड़ों लोगों के बेसिस पर डिसीजन लेती है, इंडस्ट्रीज के बेसिस पर डिसीजन लेती है, इकोनॉमी के बेसिस पर डिसीजन लेती है। गवर्नमेंट के ऊपर बहुत किस्म के प्रेशर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल। उन डिसीजंस को आप अपना डिटर्मिनिंग फैक्टर मत बनाइए। आप अपनी और अपनी फैमिली के लिए अपना डिसीजन लीजिए, आप क्या करना चाहते हैं। एंड द ओनली एडवाइस फ्रॉम माय साइड इज टू कीप इट सिंपल, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड बाकी सब चीजें जो हम जिंदगी में करते हैं, वो जिन्हें हम इतनी तवज्जो, इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, जिनके पीछे हम इतना भागते हैं, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। लॉकडाउन, इस बार सेकेंड वेव में लॉकडाउन हो या ना हो की डिबेट हो रही थी और मैं कहीं था और मैंने कहा मेरे हिसाब से, मैं मार्च की बात कर रहा हूँ। अब मेरे ट्विटर पे जाएंगे तो आपको मार्च से ही दिख जाएगा कि मैं लिख रहा था कि सेकेंड वेव आ गई है, प्लीज अपना ध्यान रखिए, आ गई, पर कोई मान नहीं रहा था। जब तक कि वो लाखों लोगों तक बात नहीं पहुंच गई, इतने सैकड़ों लोग मरने नहीं लग गए, जलाने के लिए जगह नहीं, बेरी करने के लिए जगह नहीं, ऑक्सीजन नहीं, हॉस्पिटल्स नहीं, पूरा सिस्टम कोलैप्स नहीं कर गया, तब तक हमने बात नहीं मानी, तब तक हमने लॉकडाउन नहीं किए। तो कोई मुझसे डिबेट कर रहा था कि मेरा एक फ्रेंड जिसके कुछ रेस्टोरेंट्स ने की, यार हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा अगर लॉकडाउन हो जाएगा, दैट्स नो सोल्यूशन। तो आई सेड दैट्स ट्रू, मैं भी घर बैठ जाता हूँ तो मेरा नुकसान होता है। और वो डेली वेज वर्कर के तो जिंदगी खत्म हो जाती है, चाहे वो मेरी इंडस्ट्री का डेली वेज वर्कर हो या आपकी इंडस्ट्री का डेली वेज वर्कर हो। जिसको रोज पैसा मिलना है, उसको घर जाके घर चलाना है, उसकी तो जिंदगी खत्म हो जाती है। बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज, उस एक आदमी के अलावा हम बाकियों को ये हक नहीं है कि हम अपना काम चलाने के लिए अपनी इनकम्स बराबर रखने के लिए या अपने नुकसान कम करने के लिए कहें कि नहीं एवरीथिंग शुड रन। बिकॉज ये एक अलग मुख्तलिफ टॉपिक है कि आपका फाइनेंशियल लॉस क्या हो रहा है, और ये एक अलग मुख्तलिफ टॉपिक है कि आप जिंदा रहेंगे कि नहीं। क्योंकि अगर आप जिंदा नहीं रहेंगे तो आप पैसे या करियर का क्या कर लेंगे, या अपने रेस्टोरेंट का क्या कर लेंगे, या मैं अपने एक्टिंग करियर या अपनी अवार्ड्स और ट्रॉफीज का क्या कर लूंगा, मैं अपने साथ लेके नहीं जाऊंगा उन्हें। सो यू नो, जब बात बेसिक सर्वाइवल की है तो यू हैव टू मेक इट सिंपल, गो बैक टू ब्रास टैक्स, ईट गुड, stay with the people that you love, take care of them, make sure that they take care of you. They take care of you, and yes, be positive, because इसमें fear बहुत ज़्यादा induce हो गया है। So अपने घर पे रहें और individually अपना ख्याल। You know, I don't think it's completely a bad thing, because
कुछ हद तक लोग कंप्लेसेंट हो गए थे। तो अब ये सीसॉ है, या तो बहुत डर जाते हैं या बिल्कुल ही बेफिक्रे हो जाते हैं। यू हैव टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड समवेयर कि आप अगर काम करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वेकेशन पे भी जाना चाहते हैं, जाइए, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप सेफ रहें। बस इफ यू मेक श्योर ऑफ दैट, everything is fine, because everybody has to just take that responsibility for himself or herself, and then फिर नहीं फैलेगा, because it's something that only goes on when one person doesn't take full precautions, gets it, passes on to 10 people, those 10 people pass on to another 100 people, and जब तक पूरी हम खत्म कर दें उसे और दुनिया के किसी कोने में किसी एक आदमी को रह गया, तो फिर से पूरा प्रोसेस शुरू हो सकता है। सो इट्स नॉट समथिंग जो इतनी आसानी से जाने वाली है, ना इतनी जल्दी जाने वाली है। हमको थोड़ी सी पेशेंस और थोड़ा धैर्य रखना होगा, और हमें अपनी लाइफ जिसको सिंपलर बनाना होगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपनी इच्छाओं को थोड़ा कम करना होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं कर पाएंगे। सिखा रहा है, एग्जैक्टली, बहुत कुछ हमें नहीं मिल रहा है करने के लिए। एंड यू नो, अगर आप ये सोचते रहेंगे मुझे ये चाहिए और नहीं मिल रहा, तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। आप ये सोचिए कि मुझे ये चाहिए और ये नहीं मिल रहा, पर मैं ठीक हूं, सो आई एम एक्चुअली बेटर ऑफ। एग्जैक्टली, बिकॉज़ वो सच है। इस वक्त की जरूरत यही है कि हमें अपने आप को आत्मनिर्भरता जिसे कहेंगे उस पे करके इंडिविजुअली हमें अपना ध्यान रखना है। एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल वे यू हैव एक्सप्लेन्ड, एंड आई होप दैट जितने भी व्यूअर्स हैं वो इसे सिंपल लाइफ की तरफ जो मैसेज है, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है, अच्छा खाएं और हेल्दी रहें और पॉजिटिव सोचें, एंड हम सब मिलकर इसको एक बेटर स्पेस में क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आई थिंक टेरराइज होने से काम नहीं होगा, बट जस्ट बिकॉज हमको सुनने से स्ट्रेस होता है तो उसके बारे में हम सोचेंगे ही नहीं, से भी काम नहीं होगा। मिडिल पाथ जहां पर आप अपनी सारी प्रिकॉशंस अपने दिमाग में सेट करके अपनी जिंदगी में उन प्रिकॉशंस को उतार कर फिर थोड़े निश्चिंत होकर एक सिंपल प्रोटेक्टेड लाइफ जीते हैं कि मैंने ये सेफ्टी नेट बना लिया है, एंड ओके नाउ हम बारिश आ रही है, आओ बैठकर एक कप चाय पियेंगे, कुछ अच्छा म्यूजिक सुनेंगे, हमारे पास बिजली है, पानी है, एंटरटेनमेंट है, किताबें हैं, म्यूजिक है, फिल्म है, मतलब सब कुछ है। अभी तक तो ये सारी सर्विसेज, व्हिच इज व्हाई आई सेड, वो डेली वेज वर्कर इकलौता ऐसा इंसान है जिसे पूरा हक है कि वो कंप्लेन करे कि इस सिस्टम में मेरा ख्याल नहीं रखा जाता। उससे ऊपर के जितने भी तबके हैं, हमें नहीं हक बनता कि हम पैसा या करियर या इसके बारे में बात करें। हमें सब कुछ मिल रहा है, एंड वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर इट। और चाहे हमें अपनी जिंदगी को सिंपलर करना पड़े इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, हम एक्सपेंसिव चीजें नहीं खरीद सकते, हम महंगा खाना नहीं खा सकते, हम घूम नहीं सकते, हम नए कपड़े नहीं खरीद सकते, हम नए गैजेट्स नहीं खरीद सकते, हम पुराना फोन 6 महीने के बजाय साल भर नहीं 2 साल भर चलाएंगे। इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। वो पैसा, वो करियर, वो एम्बिशन, वो सपने पूरा करने का वक्त आएगा। ये आपको उस वक्त तक जिंदा रहना है कि वो वक्त आए। एग्जैक्टली, यस, सो ये कहकर कि मुझे अभी वो उस सब की वजह से ये सब चीजों पर ध्यान नहीं देना would be foolishness. Right, and the way you've explained, I hope that जो लोग frustrate हो रहे हैं, complain कर रहे हैं, listening to this interview, they will understand that you can do this with ease and simplicity. And I'm really feeling privileged to have this interview. बहुत कुछ actually जानने मिला आपके बारे में. And on that note, I would say thank you so much, Gaurav, for being with me on this show. And I hope that audience बहुत कुछ समझ पाए, because the motive behind this is that इस hard time में भी हम अपने आप को spiritually, mentally, emotionally कैसे balance करें, and highs and lows से कैसे cope up करें. So again, thank you so much, and I hope this year, not only for you, for everyone, brings a healthy environment for each one of us. Thank you so much once again. Thank you.